فقط نگاہ سے رنگین ہے بز میں جان آنا۔ معزز حاضرین، حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں۔ حضور نے بتایا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جو میرا بندہ نوافل میں زیادتی کرتا ہے، کثرت کرتا ہے، کثرت سے نفلی عبادت کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ رب کی زبان تو پھر کون کی زبان ہوتی ہے؟ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حضرات، یہ ایک عام بندے کی بات ہے، نبیوں کی بات تو بہت بڑی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اب لکڑی میں تو کوئی جان نہیں ہوتی نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جب ہاتھ لگتا ہے تو وہ لکڑی کا عصا جو ہے وہ سانپ بھی بن جاتا ہے، پھر لکڑی بھی بن جاتا ہے۔ اللہ نے وہ طاقت اس ہاتھ میں عطا کر دی۔ اسی طرح سے حدیث کے مصداق یہ طاقت ولیوں کے ہاتھوں میں، آنکھوں میں، زبان میں، پاؤں میں ہوتی ہے، اور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو صحبت ہے یہ اثر کرتی ہے کہ کوئی چیز کسی کے ساتھ مل جائے، اگر کسی کپڑے میں آپ گلاب کے پھول ڈال دینا، تھوڑی دیر بعد نکالیں، پھول نہ بھی ہوں تو کپڑے سے خوشبو آئے گی۔ شیخ سعدی اپنے محبوب کے گھر جاتے ہیں اور مٹی سے اس کے محبوب کی خوشبو آتی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ اے مٹی، تو مشک ہے، عنبر ہے، تو ہے تو مٹی، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو مٹی کہنے لگتی ہے کہ میں کچھ وقت تیرے محبوب کی سنگت میں رہی ہوں، تیرے محبوب کو دیکھتی رہی ہوں، اس وجہ سے جو ہے یہ خوشبو میرے اندر آئی ہے۔ فقط نگاہ سے رنگین ہے بز میں جان آنا۔ آپ کی آنکھیں جب کسی کو دیکھتے ہیں تو بد نظری تو آپ کہتے ہیں فلاں کو فلاں کی بری نظر لگی، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر بری نظر ہے تو خیر کی نظر بھی ہے، اچھی، اور اتنی خیر کی نظر ہے کہ جس پہ پڑ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور میرے نبی کی نگاہ کا فیض آج اولیاء اللہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسی ہستی گزری ہے، تنگ دستی کی زندگی تھی، گھر میں مہمان آ گئے، سوچتے ہیں کہ بے وقت مہمان آئے کیا کھلاؤں، نان والا تھا، نان بائی، ساتھ اس کا تندور تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت باقی باللہ کے گھر مہمان آ گئے تو کچھ کھانا جو ہے وہ وہاں پہ روٹیاں وغیرہ بھیج دیتا ہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مہمان کو میں کچھ کھلا پلانے کے قابل ہو گیا۔ جب مہمان چلے گئے تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، نان بھائی کے پاس گئے، نان بھائی سے کہنے لگے بتا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس ایک کام کریں کہ اپنے جیسا بنا دے۔ فرمانے لگے میں اپنے جیسا تجھے بنا تو دیتا ہوں لیکن تیرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی میرے سے برداشت ہو یا نہ ہو، آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ نان بھائی کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، جب سینے سے ہٹایا تو وہ بالکل حضرت باقی باللہ تھے، کپڑے بھی ویسے بن گئے، لیکن کیا تھا کہ برداشت نہیں کر سکے، اپنے ان کے ہوش جو ہے وہ اپنے ہوش برقرار نہیں رکھ سکے، کچھ دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ جو طاقت ہوتی ہے اولیاء اللہ کے اندر، اللہ کی دی ہوئی یہ جو طاقت ہوتی ہے، اس عطا کو مانیے، یہ میرے نبی پاک کی طرف سے آتی ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ مس ہونا، یہ ساتھ رہنا، یہ کونوا مع الصادقین والی بات، جس کے ساتھ رہو گے اس کے جیسے ہو جاؤ گے۔ کو اچھے کی صحبت اچھا کرے گی، برے کی صحبت برا کرے گی، اس لیے کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کے ساتھ یہاں رہو گے قیامت میں بھی انہی کا ساتھ ملے گا۔ تو یہ آپ اس چیز کو دیکھیں، گولرا والی سرکار، ابھی پاکستان نہیں بنا، ہندوستان انگریز کا راج ہے، گولرا والی سرکار ایک اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح چل رہی ہے، ایک انگریز کیپٹن ہے، وہ پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہتھیار ہے میرے ہاتھ میں۔ تو
कहने लगा कि ये क्या हथियार है भाई, हथियार। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, कहने लगा हथियार तो ये होता है, पिस्तौल ये हथियार होता है, ये तेरा क्या हथियार है। आपने पूछा तेरा हथियार क्या करता है। उसने निशाना लिया और दरख्त पे चिड़िया बैठी थी, उसको मार दिया। चिड़िया नीचे गिर रही, कहते ये देखो ये मेरा हथियार करता है। तो गोल्डन शरीफ वाली सरकार, आपने अपनी तस्वीर मुबारक उस फौत शुदा चिड़िया के ऊपर लगाए, वो उड़ के चली गई। मानने लगे कि मेरा हथियार ये करता है। फकत निगाह से रंगीन है बज़्म जा नाना, ये हाथ में ताकत, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में चीज़ें ज़िंदा हो रही हैं। वो सोटा जो है लकड़ी का, वो सांप बन रहा है अल्लाह की दी ताकत से। गोलड़ा शरीफ वाली सरकार की तस्बीह में वो ताकत आ रही है अल्लाह की देन से। इस अता को मानना, क्योंकि मेरे नबी को जो ताकतें अता हुई हैं वो औलिया अल्लाह के अंदर है। हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया कि मेरे औलिया कर, मेरी उम्मत के वलियों में की शान, उनके अंदर वो जो ताकतें हैं वो ऐसे हैं जैसे बनी इसराइल के नबियों में है। तो हज़रात गिरामी, ये चीज़ निगाह में जो ताकत है, हाथ में जो ताकत है, ये हदीस कुदसी है कि जो हाथ में ताकत आ जाती है। एक बादशाह के हाँ एक मुलाजम है, किसी की मुरीद है, तो पीर उसके बुखारा में है, वो किसी दूर जगह पे है, दिल्ली में है किसी। तो बादशाह ने कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा, उससे कोई हार बरामद हुआ कुछ इस तरह से। कहा जी कि इस औरत को सज़ा दे दो, इसने चोरी की है। और सज़ा कैसे देते थे मौत की, कि बहुत ऊंचा एक मीनार था, मीनार से ऊपर वो नीचे फेंक देते थे, बंदा मर जाता था। तो क्या हुआ कि जब वो मीनार पे ले गए उसे फेंकने के लिए, तो पीर को याद किया कि या हजूर मेहरबानी फरमाए। तो जब उसको नीचे फेंका गया तो नीचे नहीं गिरी, पीर साहब ने अपने बाजू पे उठा लिया। हजूर आप कब आए? तो फरमाने लगे कि जब तू चुबारे से चली, मैं उस वक्त बुखारे से चला। तो ये जो उनके पाँव में ताकत है कि एक ही सेकंड में किसी दूसरी जगह, तो ये हदीस कुदसी के मिस्ताक है कि मैं उसके पाँव बन जाता हूँ। तो रब के नज़दीक तो कोई फासला नहीं ना। रब तो जैसे चाहे जिसमें वो कुदरत की ताकत आ जाए, वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। हजरात, ये जो चीज़ें हैं ये ना आपको किताबों में मिलेंगी, ये वो इल्म है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक वो इल्म है कि जो मेरे नबी ने मुझे अता किया, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे कत्ल कर दो। ये वो इल्म है, ये वो इल्म है जो कुरान में इसकी मिसाल है कि आसिफ बिन बरखिया जो है वो आंख झपकने में बल्कीस का तख्त जो है वो इतनी दूर से ला के रख देते हैं हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। ये ताकत उन वलियों की है। तो मेरे नबी पाक का वली जो है वो कितना ताकतवर होगा, जिसका जितना नबी बड़ा उसका उतना वली बड़ा। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, हज़रत सलमान के, आसिफ बिन बरखिया, उनके पास ये ताकत थी, किताब का इल्म था उनके पास। तो कुरान तो सारी किताबों से बड़ी किताब है, इसमें तो सारी चारों की चारों समाई हुई है। तो इसमें जो ताकत है, और फिर मेरे नबी पाक सब नबियों के इमाम है, और जो उलमाए जो औलिया अल्लाह है, मेरे नबी की रूहानियत के वारिस है, इनके पास जो ताकत है, इस ताकत को मानिए हज़रात गिरामी। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है। ये वलियों का मानना मेरे नबी की ताकतों का मानना है कि हजूर की नबुव्वत अपने पूरे फयूज़ो बरक़ात के साथ आज भी है। हजूर की, याद रखिए, मेरे नबी पाक की 3 कौसरें अभी भी जारी हैं। कौन कौन सी कौसरें हैं? मेरे नबी पाक के इल्म के वारिस सही उल अकीदा उलमाए कराम, ये कौसर जारी है। हजूर ने फरमाया जिसने मेरे आलम को देखा, मेरे इल्म के वारिस को देखा, ऐसे देखा जैसे मुझे देखा, उससे मुसाफा किया जैसे मुझसे मुसाफा किया। ये शान दी है जिसके पास मेरे नबी पाक का इल्म मौजूद है। तो जो हजूर को वैसे ही उम्मी का तर्जमा कर दे कि नबी अनपढ़ है, वो तो खुद बहुत बड़ा जाहल हो गया।
तो हजूर तो खुद को फरमाए मैं इल्म का शहर हूँ, तो वो कहे कि नबी अनपढ़ है, वो तो जाहल हो गया खुद। तो हजरात ये बात जो है याद रखिए। दूसरी कौसर मेरे नबी पाक के खून के वारिस सहीउल अकीदा सैयदजादे, जिनका अकीदा ठीक है। और तीसरी कौसर मेरे नबी की रूहानियत के वारिस औलिया अल्लाह, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी मामलात जो हैं, हजूर मसल्ले पे खड़े हैं और हाथ मुबारक ऊपर किया, फिर नीचे कर लिया। जब नमाज इस्तिस्का ख़त्म हुई, सहाबा ने पूछा हजूर ये क्या अदा थी? आपने फरमाया जन्नत में अंगूर बड़े प्यारे लगे थे, मैंने कहा कि तुम्हें अंगूर खिलाता हूँ। फिर मैंने इरादा बदल लिया कि चलो जन्नत में जाके खा लेना, क्योंकि यहाँ एक भी, ये मेरे नबी पाक की निगाह है, ये निगाह हजूर का फैज़, जो इसको मानता है निगाह मुस्तफ़ा को, आज उसे वो निगाह अता होती है। जैसे हजूर की अज़मत को मानने से बंदा अजीम होता है, मेरे नबी की इस निगाह की अज़मत को मानने से तुम्हें वो निगाह अता होती है। अल्लाह करे कि हमें हजूर की अज़मतें मानने की तौफीक मिले, और जिनके पास ये रूहानियत है वो तेरे पीर के पास है। अपने पीर के पास आओ जाओ, अगर दूर हो तो अपने पीर के तसव्वुर में रहो। वो मरीद जो पीर के करीब है लेकिन उसका तसव्वुर कहीं और है, उससे वो मरीद बेहतर है जो पीर से दूर है लेकिन पीर के तसव्वुर में है। अल्लाह करे मुझे भी और आपको भी पीर साहब का तसव्वुर अता हो, खा हम करीब हों खा हम दूर हों, अगर हम पीर के तसव्वुर में हैं तो हमें वो फयूज़ व बरक़ात जो है वो हासिल होंगे। और कसरत नवाफल की जो है, ये अल्लाह ने फरमाया है कि जो करेगा उसके हाथों में कुदरत की ताकत, आँखों में, ज़ुबान में, जब वो ज़ुबान से बोलेगा तो फिर वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर तोड़ने के लिए बुलाया गया। हजूर पत्थर नहीं टूटता, आपने एक वो मारा उसके ऊपर, फिर दूसरी ज़रब लगाई, फिर तीसरी लगाई, और सासा फरमाया ये ले, ये ईरान फतह हो गया, ये यमन फतह हो गया, ये रोम फतह हो गया। तो ये देखिए किस तरह से आप अपने हाथों से आपको फतह दे रहे हैं, अभी वो कितनी देर बाद फतह होने हैं। इस फतह को मानिए कि मेरे नबी ने ये फतह अता फरमाई है। तो इसी तरह से अगर इस फतह को मानने वाले गौसे पाक अगर चाहे कि चल भाई ये तेरी कश्ती उठ गई है, ये तेरी बरात ज़िंदा हो गई, तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे नबी का ये जो फैज़ान है ये चल रहा है। अगर किसी को नहीं मिल रहा, अगर चमगादड़ को सूरज नज़र नहीं आता तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है हज़रात गिरामी। सूरज तो अपनी जगह वैसे का वैसा है, चमगादड़ को आँखों की ज़रूरत है। आँख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नज़र आए क्या देखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।